So I think in last lecture we already started this part, that is nothing but the examples on DYS rule. Okay, yeah, simply you can say in this case basically you have to solve you have to find the value of integral, है ना? You have to find the value of integral or integration using this DYS rule. So what is the DYS rule? Okay, DYS rule means what? DYS rule means what? You can find the derivative of integral function. Okay, DYS means what? We can find derivative of integral function. Okay. So here in this case, just let me add one student. So here in this case, this is your integral function. I of alpha is equal to integration from a to b f of x alpha dx. So this is your integral function or integration, you can say. Now since this is the function of alpha, I of alpha means this is the function of alpha. It means here you have to differentiate this with respect to alpha. So just take the derivative of this with respect to alpha. Then by DYS rule, what is that derivative? So on LHS you have to just write di by d alpha. So on LHS you have to just write di by d alpha, and on RHS keep all the other terms same. Okay, just replace this f by, so just replace this function by its partial derivative with respect to alpha. So only thing is what you have to just change the function. Okay, so change that function to its partial derivative, that is dabba by dabba alpha of f of x alpha. So this is rule simple है, rule में ज़्यादा कुछ steps नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ difficult terms भी नहीं है. Okay, just replace f by their partial derivative, that gives you the derivative of I with respect to alpha. Okay, and now it become a differential equation. If you see here on LHS you can find the differential coefficient di by d alpha. So it actually becomes the differential this is actually your differential equation which you have to solve by using variable separable form. I will take one more, I will take that same example again, that you have to solve using variable separable form, and that gives you the final answer. Okay, so and there is one more result which I need in the same unit itself, that integration 0 to infinity sin ax upon x dx. Okay, it gives you value pi by 2 when a is positive, it gives you value minus pi by 2 when a is negative. Okay, so just remember this result. Okay, इसका प्रूफ आपने ऑलरेडी m1 में किया, m2 में किया था. ओके, अंडर द टॉपिक DYS के पार्ट में ये प्रूफ था. ठीक है, राइट नाउ वी जस्ट नीड दिस फॉर्मूला, दैट इज sin of x upon x dx is equal to pi by 2 when your a is positive, and it gives you the value minus pi by 2 when your a is negative. So there is one example on this formula also. Okay, so just can anyone tell me whether we have covered this example or not? मैं रिपीट करने वाला हूँ, but can anyone confirm this whether we have covered this example or not? Using inverse sine transform, find f of x if fs of lambda equal to this. ये हुआ था क्या लास्ट लेक्चर में? ओके, सो ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ बट एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो तो कहीं पे ये मेंशन नहीं होता कि आपको ये एग्जांपल DYS रूल से ही सॉल्व करना है. ये पहले आप दिमाग में फिट करोगे. कहीं पे ऐसा नहीं आने वाला कि यूज DYS रूल एंड सॉल्व और फाइंड दिस इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि हाउ यू आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑन DYS रूल. ठीक है, तो मैं दोनों वे से बोलता हूँ. एक वे क्या है कि जहां पे आपको इंटीग्रेशन समझ में आता है कि नाउ दिस इंटीग्रल इज डिफिकल्ट टू सॉल्व. ओके, कैसे आइडेंटिफाई करना वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. दैट इज वन वे. ओके, एक वे क्या होता है कि आपको यही डायरेक्टली समझ में आता है, नाउ दिस इंटीग्रल इज डिफिकल्ट टू सॉल्व इंटीग्रल. सेकंड अप्रोच क्या होता है? ओके, अप्रोच नहीं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली इस पूरे यूनिट में आपको सिलेबस में 2 ही एग्जांपल है ऑन दिस DYS रूल. तो ओके, तो आप उतने प्रिपेयर करो. ओके, तो दैट इज आल्सो इनफ. ठीक है, तो जिनको प्रॉपर मैथमेटिकली जाना है दे कैन आइडेंटिफाई द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द इंटीग्रल एंड देन दे कैन सिलेक्ट द DYS रूल. ओके, या स्पेशली डायरेक्ट सेकेंडरी स्टूडेंट जिनको नहीं इतने जल्दी से समझ में आ रहा है, आप डायरेक्टली ये 2 एग्जांपल्स आप प्रिपेयर करो वेयर वी नीड टू यूज दिस DYS रूल. इसलिए मैंने इसका जो टाइप था वो सेपरेट किया. बुक में अगर आप देखते हो तो बुक में कंबाइन वे में. ओके, सो इन सोल्यूशन here we have to calculate the inverse sine transform of this inverse sine transform, that is we have to calculate the f of x. So first write down that formula. So f of x is equal to 2 by pi integration 0 to infinity fs of lambda sin lambda x d lambda, where this fs of lambda is actually
1 by lambda e raised to minus a lambda sin lambda x. Okay, now if you see here आप ये इंटीग्रल देखते हो, आपके पास एक रेडीमेड रिजल्ट था, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस ax cos ऑफ bx dx. सो इफ यू कंपेयर दिस टू इंटीग्रल, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है. प्रॉब्लम इज व्हाट? प्रॉब्लम विद दिस ओनली 1 बाय लैम्बडा. ठीक है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर था, बट यहाँ पे 1 बाय लैम्बडा की वजह से यहाँ पे ये इंटीग्रल सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा है. नाउ इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड. अगर आप यहाँ पे भी नीचे x लेते हो ना, देन इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड. Okay, in this case it is difficult to find value of this integral, okay, using our regular approach. क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला था वो बस इन दो टर्म्स के लिए था. अगर आप नीचे x लेते हो मीन्स वो फॉर्मूला आपका फेल हो जाएगा, आपको फिर से अलग वैसे इसको सॉल्व करना होगा, विच इज डिफिकल्ट. व्हाई इट इज डिफिकल्ट? बिकॉज बोथ फंक्शंस बोथ फंक्शंस आर इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल. व्हाट इज मीन बाय इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल? आप देखो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है. Therefore, it is difficult to solve this integral using by parts rule. By parts rule use करने के लिए कहीं पे वो डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, just to make our calculation simple. This is not the restriction of by parts rule. You can apply this by parts rule here also, but in that by parts rule you will get the infinitely many terms. So what is the restriction, or what is the I can say the condition to apply this by parts rule? Okay. So there must exist one function whose derivative vanishes after some steps, okay, or after some finitely many steps. तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि ये इस फॉर्मूले से तो सॉल्व नहीं हो रहा है, e raised to minus x cos of bx का जो फॉर्मूला था, बिकॉज ऑफ दिस 1 upon x. और अगर आप बाय पार्ट्स रूल से भी ट्राई करते हो तो बाय पार्ट्स रूल से भी क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? बिकॉज दिस बोथ फंक्शंस आर इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन. इसलिए ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नाउ हियर we have to find value of this integral using the DYS rule, that is differentiation under integral sign. So what is that rule? So here this is your f of x, so just differentiate this with respect to x. Okay, so I will tell you here, so just differentiate this with respect to x. So here onwards we will use DYS rule. So by DYS rule, okay, so what is that DYS rule? So just replace LHS by their derivative, that is df by dx, and on RHS, okay, keep all the remaining terms as it is. Just replace this function means this whole part, है ना? So just replace this function by its partial derivative, that is partial derivative with respect to the same variable. So just replace this whole function by dabba x of 1 upon lambda e raised to minus a lambda sin lambda x into d lambda. Can see here also. So by DYS rule, that is this, you will get this, है ना? वही मैंने लिखा जो यहाँ पे था. Now here we have to take the derivative of this whole bracket term, but with respect to x, है ना? तो जब भी आप x से डिफरेंशिएट करते हो, अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, है ना? तो आप देखो 1 बाय लैम्बडा में कहीं पे भी x नहीं है, तो 1 बाय लैम्बडा इज कांस्टेंट, सो विच इज इक्वल टू 2 बाय pi, and here you can see as this 1 by lambda is free from x, so it is constant. So 1 by lambda is constant. E raised to minus a lambda, okay, also does not contain the x term, so again this part is constant, so e raised to minus a lambda. So only variable is sin lambda x, so just take the derivative of sin lambda x, which is cos lambda x, and in case of derivative you have to multiply that function by the derivative of bracket term, है ना? डेरिवेटिव में आप मल्टीप्लाई करते हो, बट इंटीग्रेशन में आप चेन रूल क्या होता है आपका? इंटीग्रेशन में आपको उससे डिवाइड करना है, सो दैट गिव्स यू लैम्बडा ओनली, है ना? डेरिवेटिव ऑफ लैम्बडा एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज लैम्बडा. नाउ हियर यू कैन कैंसिल दिस लैम्बडा. तो जिस टर्म की वजह से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम थी टू अप्लाई दैट स्टैंडर्ड रिजल्ट विच इज e raised to minus x into sin bx, ठीक है, अभी वो टर्म ही आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? डिलीट हो रहा है. सो नाउ हियर यू कैन सी इन नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट इंटीग्रल विच इज फ्री फ्रॉम 1 upon lambda. So here you will get that integral which is free from 1 upon lambda. So that I will show you next slide. Okay, ये मिल जाएगा. अभी आपके पास इसका डायरेक्ट रिजल्ट है. That result is e raised to minus x cos of bx dx is a upon a square plus b square. And if you compare this two result, a will remain same. And if you compare this, a will remain same. B equal to, we have to take b equal to lambda. Okay, so you will get that a upon, सॉरी ये dx है ना, dx है मतलब x का कोएफिशिएंट, तो d लैम्बडा है मतलब लैम्बडा का कोएफिशिएंट, सो विच इज व्हाट? x. मुझे ज्यादातर x की आदत है ना. हाँ, dx है तो x का कोएफिशिएंट लेना है cos के अंदर, d लैम्बडा है तो cos के अंदर लैम्बडा का कोएफिशिएंट क्या है? x. सो देयरफॉर योर b इज x, सो इट बिकम a अपॉन a स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर। सो नाउ दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट ओके। और आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, इस पूरे या इस एग्जांपल में बेसिकली आपको एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है ना। ये आपको गिवन था, एफ ऑफ एक्स आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज नथिंग बट इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो टू फाइंड दैट एफ ऑफ एक्स ओके वी नीड टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तभी आपके पास एफ आने वाला है ओके। एंड टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल use the variable separable form है ना। So what is your variable separable form? Just make the coefficient of df to be function of f. There is no function of f, so you have to keep this value as it is on LHS, and on and the coefficient of dx must be the function of x. तो आपको इसको क्या करना होगा, राइट साइड में शिफ्ट करना होगा। So here you will get वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। So this is equal to on LHS you have to keep this df as it is, and on RHS you have to take this dx on right hand side. So now here you will get the coefficient of dx to be function of x and the coefficient of df to be function of f. Okay, but there is no term of f, means that coefficient is 1. Now this is in variable separable form. जैसे आपका वो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाता है, in that case you can integrate this. Always remember, if that differential equation is in variable separable form, then only you can integrate on both side. Okay, so on integrating on both side, you will get df का इंटीग्रेशन आता है f. Okay, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, df का इंटीग्रेशन आता है f 2 by pi integration of this, which is a upon a square plus x square dx, so which is equal to 2 by pi. This a is constant. And what is integration of 1 upon a square plus x square? Anyone? What is integration of 1 upon a square plus x square? x square का इंटीग्रेशन क्या होता है? Yes, I think it is 1 by a tan inverse of x by a. करेक्ट हो गया। एंड बट हमने दोनों साइड से इंटीग्रेशन लिया तो आपको यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना होगा। सो हियर आई कॉल दैट आर्बिट्री कांस्टेंट टू बी कैपिटल ए, है ना। इंटीग्रेशन में जो सी आप ऐड करते हो वही है यहाँ पे। Now this a cancel with this a, and you will get 2 by pi tan inverse of x by a plus capital A. Okay, ये थी आपकी f की वैल्यू, बट दिस f is nothing but f of x. आपको पता है ये बस नोटेशन है, आप f लिखो या लिखते समय f of x लिखो, it doesn't matter. Now, so I think this is your final answer. आपने वो इंटीग्रल सॉल्व किया है यहाँ पे, है ना। इंटीग्रल सॉल्व कैसे किया है? डिवाइस रूल से किया है। डिवाइस रूल क्या है? डिवाइस रूल क्या होता है? आप इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कर सकते हो, फिर उसके बाद अगर आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल। बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इंटीग्रल इज व्हाट? ओके, this integral or this value contain the arbitrary constant and we want the value which is free from arbitrary constant। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है, ओके, उस आंसर में कैपिटल ए आ रहा है, ठीक है। सो टू फाइंड दिस कैपिटल ए वी हैव टू यूज द इनिशियल कंडीशन। ओके, अभी इनिशियल कंडीशन का मीनिंग क्या होता है? इनिशियल कंडीशन मतलब ऐसे कुछ तो आपको चाहिए, एफ ऑफ के इक्वल टू एल, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल कंडीशन, है ना। सो फाइंड वन के फॉर विच यू विल हैव द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ के। फिर से बोल रहा हूँ, फाइंड वन के, ओके, फॉर विच यू विल हैव द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ के। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो गिवन है वो आपको देखना होगा, मतलब क्या आपके पास फॉर्मूला था, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, आई थिंक ये इनवर्स साइन था, ओके, दैट इज एफ एस ऑफ लैम्बडा था यहाँ पे, विच इज एफ एस ऑफ लैम्बडा sin lambda x d lambda, and if I put all these values you will get f of x is equal to 2 by pi 0 to infinity. Now replace fs of lambda by that value, so 1 by lambda e raised to minus a lambda sin lambda x d lambda। okay, तो यहां से वो आपको इनिशियल कंडीशन मिलने वाली है, स्टार्टिंग का पॉइंट जो आपने इनिशियली लिया था। यही तो इंटीग्रल आपने सॉल्व करना था ना, तो यही इंटीग्रल आपने सॉल्व किया, उसकी वैल्यू ये आ रही है यहाँ पे जो हमने नोट की है, ठीक है। बट आपको मैंने क्या बोला है? नाउ दिस इंटीग्रल कंटेन द आर्बिट्री कांस्टेंट, ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये आपको कैसे भी करके कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वी नीड टू यूज द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का मीनिंग क्या होता है? एफ ऑफ के इक्वल टू एल, मतलब आपको एक ऐसा के कैलकुलेट करना है फॉर विच यू विल हैव द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ के। तो यहाँ पे मुझे एक्स की एक ऐसी वैल्यू बोलो, टेल मी द वैल्यू फॉर विच यू विल हैव एफ ऑफ एक्स, मतलब ये इंटीग्रल सॉल्व होना चाहिए, ऐसा एक एक्स आप आइडेंटिफाई करो, ओके। टेल मी एक्स
फॉर विच यू विल हैव वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल की वैल्यू, बोथ आर सिमिलर ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब इंटीग्रल की वैल्यू। एनीवन टेल मी द वैल्यू फॉर एक्स, एक एक्स की आपको ऐसी वैल्यू चाहिए, उस एक्स की आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू आनी चाहिए। एक्स इज इक्वल टू, आई वांट सिंपल, सी यू कैन असाइन एनी वैल्यू एट दैट, वो इंटीग्रल सॉल्व होना चाहिए, ओके, बट सबसे सिंपल क्या है वो मैं बोल रहा हूँ। आप अदर वैल्यू से भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब मैं जो बोलने वाला वही वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है। अब एक जो आंसर आ रहा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, या बोल रहे हो ना, हाँ, उससे क्या सिंपल होगा, ओके, एक्स इक्वल टू ए से आप चेक करो, यहाँ पे लैम्बडा आने वाला है, बट स्टिल ऑल थ्री आर वेरिएबल ना, के विद रिस्पेक्ट टू डी लैम्बडा जा रहा है, तो कुछ भी सिंपल नहीं हो रहा है, मतलब एक्स में ए रखो या एक्स की जगह पे ए रखो, इट डजंट मैटर, ओके। बट इफ यू असाइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, मैंने आपको क्या बोला है, पहले आप क्लियर करो, आपको एक्स की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिससे ये इंटीग्रल जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, दैट इज द रफ आइडिया, ठीक है। आपको एक ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए फॉर विच यू विल हैव द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रल की वैल्यू जल्दी से सॉल्व होनी चाहिए। तो सिंपल आई एक्स आपके हाथ में है ना, x इज अ रियल नंबर, यू कैन असाइन एनी वैल्यू टू x, तो अगर मैं x इक्वल टू जीरो असाइन करता हूं, मुझे इंटीग्रल सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो व्हाट इज माय सिंपल वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज इफ आई पुट x इक्वल टू जीरो, साइन जीरो बिकम जीरो, and in that case I don't need to assign or I don't need to solve this integral also, है ना। so if I put x is equal to 0 in this equation 1, I can say, या जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन था, तो आपको क्या मिलता है, लेफ्ट साइड में f ऑफ 0, राइट साइड में 0, क्योंकि बिकॉज साइन 0 इज 0, सो दिस बिकम योर इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो यह आपको थोड़ा वर्कआउट करना होगा, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको इतनी जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो यह आपका फंक्शन था, यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया था, सो दैट आई विल गेट f ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो वो सेम लॉजिक में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, इसमें भी आप क्या करो, x इक्वल टू 0 पुट करो, तो लेफ्ट साइड में मिलेगा f ऑफ 0, राइट साइड में मिलेगा tan इनवर्स 0 इज 0 प्लस a एज इट इज, बट f ऑफ 0 इज 0, सो दैट इंप्लाइज a इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या है, इतना ही है। जो आर्बिट्री कांस्टेंट आपने ऐड किया था, उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सो ये दो बार मैंने एक्सप्लेन किया है, ओके। सो एटलीस्ट प्रिपेयर दिस वन एग्जांपल एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। There is one more example. Okay, using the inverse sine transform. Okay, find f of x. So यहाँ पे आपको inverse transform का use करना है, ठीक है। So first I will write that formula, and here we have given the fs of lambda. So fs of lambda is this. If I put, you will get this. अब इसके बाद भी दो ऑप्शन है, आप ये इंटीग्रल डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको बोलता हूँ कैसे। उसके लिए आपको बस ये रिजल्ट यूज करना है जो मैंने आपको दिया था, साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, एक्स वैल्यू पाई बाय 2 व्हेन ए इज पॉजिटिव, एक्स वैल्यू माइनस पाई बाय 2 व्हेन ए इज नेगेटिव। यू कैन यूज दिस रिजल्ट एंड आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। सेकंड, आप यहाँ पे भी डीवाइस रूल का यूज कर सकते हो। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि वाई, हाउ यू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे डिवाइस का रूल यूज कर सकते हो, कैसे, क्योंकि ये डी, यहाँ पे वेरिएबल डी लैम्बडा है, डी लैम्बडा में तो ये भी वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल, सो देयर आर 3 फंक्शन। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे लैम्बडा नहीं होता, इफ लैम्बडा इज एब्सेंट हियर, देन यू कैन इजीली अप्लाई साइन ए इनटू साइन बी फॉर्मूला टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, और सॉल्व हो जाता वो, है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है आपको बिकॉज ऑफ लैम्बडा ओनली, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे भी, सॉरी चला गया, आप यहाँ पे भी डिवाइस रूल का यूज कर सकते हो। पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है। तो डिवाइस रूल क्या होता है, लेफ्ट साइड में आ जाएगा उसका डेरिवेटिव, राइट साइड में क्या होगा, जो फंक्शन था आपका पूरा, ये पूरा, इसको रिप्लेस करो उसके डेरिवेटिव से, दैट इज डबा बाय डबा एक्स ऑफ दिस होल फंक्शन विच इज साइन ए लैम्बडा, साइन लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा d lambda. So in next step you will get 2 by pi 0 to infinity. अभी with respect to dx आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब sin a lambda upon lambda, ये कांस्टेंट है बिकॉज दिस टू टर्म्स आर फ्री फ्रॉम x, तो ओनली वेरिएबल इज sin lambda x, तो sin lambda x का डेरिवेटिव क्या आता है, cos lambda x,
but multiply by derivative of bracket term with respect to x, which is lambda, and into d lambda as it is. So this lambda cancel with this lambda, and you will get 2 by pi 0 to infinity sin a lambda into cos lambda x dx. ठीक है, बस आपको अभी क्या करना है, ये राइट साइड का इंटीग्रल सॉल्व करना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करना है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इस अप्रोच से नहीं दिया आपको, बट ये अप्रोच है, ओके। मे बी आप अप्रोच याद रखो, एग्जाम्पल्स अलग अलग आ सकते हैं वहाँ पे, यही एग्जाम्पल आएगा ऐसा भी नहीं है। ये इंटीग्रल सॉल्व करो, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, तब जाके वैल्यू मिलेगी। ये लेंथी टाइप के क्वेश्चन है, बट अदर अप्रोच क्या है, सो दिस इज द अप्रोच फ्रॉम ड्यूआस रूल, ठीक है। देखो आपको कितना आगे वो कैलकुलेशन आ रहा है। अदर अप्रोच क्या है, आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूला यूज भी करते हो साइन ए टू साइन बी का, तो क्या मिलता है आपको, साइन ऑफ, सो दैट फॉर्मूला इज, ये टू में अंदर एडजस्ट करता हूँ, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, नीचे का लैम्बडा एज इट इज। फिर आप क्या करो, लैम्बडा इस प्लस से डिवाइड करो इंटीग्रल, सो साइन ऑफ ए प्लस एक्स इंटू लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ ए माइनस एक्स लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। सो आई थिंक नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट दिस। अब अगर आप अपना रिजल्ट अच्छे से देखते हो, तो रिजल्ट आपके पास क्या था, a इंटू एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी का आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है, विच इज पाई बाय 2 व्हेन a इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 व्हेन a इज नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे a की जगह पे आपके पास ये टर्म आ रहा है, दिस इज योर a प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव आता है, if this value is positive, your answer is pi by 2. If this value is negative, your answer is minus pi by 2. Okay? So इसके आगे बस आप केसेस करो, है ना। ये रिजल्ट जो मैंने आपको दिया था पहले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या केसेस किए मैंने, यहाँ पे अगर a प्लस एक्स पॉजिटिव आता है, ओके, तो ये 1 बाय पाई तो दोनों जगह पे आने वाला है ना, तो 1 बाय पाई इंटू पाई बाय 2, अगर ये भी पॉजिटिव आता है तो 1 बाय पाई इंटू पाई बाय 2, ये था आपकी फर्स्ट केस। सेकंड केस में मैंने क्या किया है, दोनों को, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव कंसिडर करा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक को पॉजिटिव किया तो ये पाई बाय 2 आएगा, एक को नेगेटिव किया तो माइनस पाई बाय 2 आएगा। थर्ड केस भी आप कर सकते हो, एक को नेगेटिव करो एक को पॉजिटिव करो, शायद जन ये सेम था इसलिए मैंने शायद नहीं लिखा होगा, ठीक है, जो पॉजिटिव वहां पे प्लस पाई बाय 2 आएगा। लास्ट केस दोनों नेगेटिव करो, तो दोनों नेगेटिव करते तो 1 बाय पाई माइनस पाई बाय 2 1 बाय पाई माइनस पाई बाय 2 हो गया, ठीक है। तो केसेस में आ रहे हैं, ये भी आगे इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट उतना इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर यूर रेफरेंस कि इसके आगे इसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज इनफ, ओके, एज फार एज ड्यूअस रूल इज कंसर्न। तो जो फर्स्ट एग्जांपल था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अब वो अच्छे से प्रिपेयर करो, ओके। सिमिलर एक एग्जांपल है, बस वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो मैं आपको वो दे देता हूँ असाइनमेंट में। Okay, now the last part from this unit is actually the examples on line integral, okay, which is similar to inverse Fourier transform. तो इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं आने वाला, the only thing is what the language is different, okay. So let me start with the first example. Solve the integral equation. मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि यहाँ पे बस लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपको पता है कि यहाँ पे क्या क्या करना है। So solve the integral equation that is 0 to infinity f of x sin lambda x d lambda which is equal to this, okay. So can anyone tell me सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन मींस आपको क्या फाइंड करना है, एनीवन? सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन मींस आपको यहां पे क्या फाइंड करना है? यस, गुड। बट इनवर्स मींस व्हाट? इनवर्स कैलकुलेट करना मतलब क्या फाइंड आउट? इनवर्स में क्या कैलकुलेट करते हो आप? इनवर्स में आप क्या कैलकुलेट करते हो? यू आर करेक्ट, बट इनवर्स में आप क्या कैलकुलेट करते हो? इनवर्स के सारे फॉर्मूले में लेफ्ट साइड में क्या होता है? यहां पे क्या होता है? एफ ऑफ एक्स। तो इनवर्स में आप जनरली क्या कैलकुलेट करते हो? जनरली मतलब इन केस ऑफ इनवर्स आप एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हो, और इन केस ऑफ फोरियर, इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्म आप एफ ऑफ लैम्बडा कैलकुलेट करते हो। ये तो आपको पता होना चाहिए अभी, ओके। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एफ ऑफ लैम्बडा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप अगर इस इंटीग्रल इक्वेशन को देखते हो तो यहाँ पे बस सो द ओनली अननोन इज एफ ऑफ एक्स। इस पूरे इंटीग्रल इक्वेशन में अननोन आपका क्या है? एफ ऑफ एक्स है। तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। चलो, एक तो पार्ट आपको समझ में आ गया। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ओके, आपको यहाँ पे क्या गिवन है? व्हाट इज गिवन?
आपके पास 6 फॉर्मूले टेबल में से, बट आपको यहाँ पे क्या गिवन है? कैन एनीवन आइडेंटिफाई दिस? व्हाट इज गिवन? हाँ, आपको क्या गिवन है? वो टेबल आपको पता है ना, टेबल में से कोई तो एक फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे गिवन है, सो व्हाट इज दैट? कैपिटल एफएस ऑफ लैम्बडा, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे आपको क्या गिवन है? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। कैसे आइडेंटिफाई किया? राइट साइड में लैम्बडा का पार्ट है ना, राइट साइड में लैम्बडा मतलब वो ट्रांसफॉर्म है। ओके, राइट साइड में अगर एफ ऑफ एक्स आता तो वो होता है इनवर्स, तो यहाँ पे राइट साइड में लैम्बडा का फंक्शन है, मतलब ये क्या है? ट्रांसफॉर्म है। बट वो भी कौन सा ट्रांसफॉर्म है? बिकॉज ऑफ दिस साइन इट बिकम द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ओके, सो हियर व्हाट इज गिवन? वी हैव गिवन द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो अगर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये सेम है। ठीक है, नाउ जस्ट कंपेयर दिस टू फॉर्मूलेज। ठीक है, सो इफ यू कंपेयर दिस टू फॉर्मूले यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफएस ऑफ लैम्बडा। वो वैल्यू क्या है आपकी? ये। बाय कंपेयरिंग दिस टू रिजल्ट यू विल गेट योर एफएस ऑफ लैम्बडा व्हिच इज इक्वल टू दिस। सो एफएस ऑफ लैम्बडा इक्वल टू 1 माइनस लैम्बडा 0 where lambda is lies between 0 to 1 and it is 0 when lambda is greater equal 1। बट आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट क्या करना है? fx कैलकुलेट करना है ना? ये आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था। सो नाउ यू हैव टू टेल मी द फॉर्मूला फॉर f of x, द फॉर्मूला फॉर f of x करस्पॉन्डिंग टू fs ऑफ लैम्बडा। अभी मुझे क्या चाहिए? द फॉर्मूला फॉर f of x करस्पॉन्डिंग टू fs ऑफ लैम्बडा, दैट फॉर्मूला इज दिस। ये आपको पता है, ये टेबल से भी समझ में आ जाएगा। fs ऑफ लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग इनवर्स का फॉर्मूला, सो दैट इज 2 बाय पाई 0 टू इन्फिनिटी fs ऑफ लैम्बडा sin लैम्बडा x d लैम्बडा। बट ये जो fs ऑफ लैम्बडा है, fs ऑफ लैम्बडा बस 0 टू 1 पे डिफाइन है, रिमेनिंग टर्म्स पे वो 0 है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो 0 टू 1 पे डिफाइन है और इट टेक वैल्यू नॉन जीरो ऑन 0 टू 1 ओनली। सो दिस इंटीग्रल चेंजेस टू 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू 1। अभी fs ऑफ लैम्बडा 0 टू 1 पे क्या गिवन है? 1 माइनस लैम्बडा into sin lambda x d lambda. So just solve this integral, that will be your final answer. So in next step, as this is given only for 0 to 1 interval, and now you can use the generalized rule of by parts, क्योंकि ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज आफ्टर सम स्टेप्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बिकम 0, है ना? सो दिस बिकम योर फर्स्ट फंक्शन एंड जस्ट यूज द जनरलाइज्ड रूल ऑफ बाय पार्ट्स। तो रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रख दो, सेकंड का आता है यहाँ पे इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव आता है नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड का आता है इंटीग्रेशन। चलो, तो इसका डेरिवेटिव आ गया -1 और इन बिटवीन यू हैव टू गिव दी प्लस और माइनस साइन। तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस था, तो इसका डेरिवेटिव आता है -1, इसका इंटीग्रेशन आता है कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन अपॉन एक्स, सो इट बिकम x स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा इसका डेरिवेटिव बट विच इज 0, इसलिए नेक्स्ट स्टेप के टर्म्स मैंने यहाँ से डिलीट किए। ओके, नाउ एंड इन दिस एक्सपांशन जस्ट पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो अगर आप अपर लिमिट पुट करते हो, ओके, अगर आप अपर लिमिट पुट करते हो तो क्या मिलेगा? एक्स लैम्बडा इक्वल टू 1 पे ये 0 बन जाएगा, सो 0 माइनस माइनस 3 टाइम्स माइनस है, 1 2 3, तो ये टोटल माइनस आएगा। लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट करना है, सो यू विल गेट साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका अपर लिमिट। नाउ लोअर लिमिट, सो 2 बाय पाई लोअर लिमिट इज लैम्बडा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा, cos 0 1 होता है, तो ये आने वाला है आपका 1 अपॉन एक्स। नाउ 3 टाइम्स माइनस इज माइनस एंड साइन 0 क्या होता है? 0 हो गया। सो फाइनली विल हैव 2 बाय पाई, ये माइनस, सॉरी यहाँ पे एक और माइनस है ना, cos 0 पे भी cos का माइनस साइन रह गया था, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, सो इट गिव्स यू 1 अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यू कैन इजिली डू दिस कैलकुलेशन। वो वही था, आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। विल टेक वन मोर एग्जांपल। सी, ये लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना कुछ आपको एक्सप्लेन किया था, मतलब आपको अभी लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूले आइडेंटिफाई हो रहे हैं ना, सो यू आर टोटली कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर। ओके, सो क्योंकि बस अभी आपको इमीडिएटली वो लिंक नहीं मिलेगी यार कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे थे। ओके, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक देता हूँ पूरे इस चैप्टर की। ओके, हार्डली मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं देने वाला एज फार एज दिस यूनिट टेस्ट इज कंसर्न। आप उस पर वर्कआउट करो, अगर आपको वो वहाँ पे फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं कौन सा यूज करना है, तो
तो उसके बाद स्पेशली जिनका इंटीग्रेशन वीक है उनको बस क्या वर्क करना है, इंटीग्रेशन पे वर्क करना है। ओके, सो डोंट ट्रीट दिस पार्ट एज अ डिफिकल्ट यूनिट। ओके, आप अगर प्रैक्टिस करते हो ना तो यही एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे आपको स्कोर ज्यादा मिलेगा, बिकॉज ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं है या ज्यादा कुछ आउटसाइड बुक के भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तो लिमिटेड क्वेश्चंस आर देयर, लिमिटेड प्रिपरेशन इज देयर, सो यू कैन इजीली वर्क ऑन दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको भी एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है, राइट साइड में लैम्बडा का फंक्शन है ना, और यहाँ पे कॉस आ रहा है, मतलब हियर वी हैव गिवन द फोरियर, सॉरी कॉस मतलब सी ना, तो हियर वी हैव गिवन द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सो इन सॉल्यूशन consider Fourier cosine transform, which is this, and if you compare these two formulas you will get fc of lambda is equal to e raised to minus lambda. So fc of lambda equal to e raised to minus lambda. बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए f of x, है ना। अब क्या करना होगा, f of x का फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ fc of lambda। f of x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ fc of lambda, दैट इज नथिंग बट इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म, है ना। सो दैट इज इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म, विच इज f of x equal to 2 by pi 0 to infinity fc of lambda cos lambda x d lambda। fc of lambda की वैल्यू क्या, e raised to minus lambda, so which is equal to 2 by pi 0 to infinity e raised to minus lambda cos lambda x d lambda। आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना, e raised to minus x cos bx dx is equal to a upon a square plus b square। तो अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे क्या मिलता है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, और b की वैल्यू क्या है, b मतलब dx है तो x का कोएफिशिएंट, d लैम्बडा तो लैम्बडा का कोएफिशिएंट मतलब x। आप केयरफुली कंपेयर करो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, आप लैम्बडा में लिखोगे। सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू x, सो दैट गिव्स यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑन दिस यूनिट, यहीं पे आपका ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। ये डिफिकल्ट चैप्टर था, इसके आगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज ट्रिवियल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन। तो पहले आप इस पे ही फोकस करो, ये बाद में देखते हैं, इसमें थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट है, देखते हैं कितने स्टूडेंट को समझ में आती है, फिर बाद में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी क्या गिवन है, राइट साइड में लैम्बडा का फंक्शन है, लेफ्ट साइड में कॉस है, मतलब यहाँ पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म गिवन है, बट आपको कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं एफ सी ऑफ लैम्बडा का। वो फॉर्मूला क्या है, ये था, कंपेयर करके आपको समझ में आता कि एफसी ऑफ लैम्बडा की वैल्यू यही आने वाली है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफसी ऑफ लैम्बडा। आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स, सो कंसीडर द फॉर्मूला फॉर एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एफसी ऑफ लैम्बडा, दैट इज नथिंग बट इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म, दैट फॉर्मूला इज दिस, ठीक है। अभी देखो इसके आगे एफसी ऑफ लैम्बडा 0 to 1 पे डिफाइन है, तो ये आगे आ जाएगा 0 to 1 1 माइनस लैम्बडा कॉस लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा। आई थिंक ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, ओके। सो आई विल क्विकली कम टू द लास्ट आंसर। ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व किया, तो सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है मैंने, बट इसमें क्या है, यूजिंग दिस यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। आगे का पार्ट क्या था कि चलो आपने इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व किया, ये आपको मिल चुका है अभी, नाउ दिस इज योर फाइनल वैल्यू, ओके। बट यूजिंग दिस यू हैव टू कैलकुलेट दिस साइन स्क्वायर z अपॉन z स्क्वायर इंटू पाई बाय 2, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, आपको गिवन क्या था, जो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ओके, उसमें आपको क्या गिवन था, एफसी ऑफ लैम्बडा का मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा बिकॉज़ यू आर नॉट स्लाइड। आपको गिवन क्या था, ये देखो, ये स्टेप, ये जो गिवन है, ये क्या गिवन है, राइट साइड में यहाँ पे विल राइट हियर, नाउ फोकस केयरफुली, यहाँ पे राइट साइड में क्या है आपके पास, दिस वैल्यू इज एफ सी ऑफ लैम्बडा। इसलिए आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हियर वी हैव गिवन दी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये आपको गिवन था, दिस पार्ट इज गिवन, तो वही मैं यूज करने वाला हूं। तो यूज दैट सेम रिजल्ट, ओके, यूज दैट सेम रिजल्ट टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। तो अभी मैं एनिमेशन पे जाता हूं फिर से, दिस पार्ट इज गिवन, है ना। इसमें अगर मैं सारे वैल्यूज डाल देता हूं, एफसी ऑफ लैम्बडा की वैल्यू क्या थी, कंपेयर करके ये मिल चुकी है आपको, एफ ऑफ यू अभी आपने कैलकुलेट किया था, वो क्या है, 1 माइनस कॉस यू अपॉन यू स्क्वायर कॉस लैम्बडा यू डी, ये हो गया। मतलब आपने क्या किया है, उस इंटीग्रल में जो जो अननोन था सारे वैल्यूज रख के आपको ये एक फाइनल इक्वेशन मिल जाता है। अभी आपका क्वेश्चन क्या है, नाउ आई वांट दिस आंसर फ्रॉम योर साइड, ओके।
कैन एनीवन टेल मी हाउ यू यूज दिस रिजल्ट टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रल? मुझे कैसे भी करके इस इंटीग्रल को क्योंकि 0 to ∞ बस इसमें ही आ रहा है, मतलब ये जो पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसको मुझे कैसे भी करके कन्वर्ट करना है sin स्क्वायर z अपॉन z स्क्वायर में. सो कैन एनीवन टेल मी दैट? कैसे? ये डोंट फोकस दिस, आपको क्या एडजस्ट करना है? इंटीग्रेशन 0 to ∞ sin स्क्वायर z अपॉन z स्क्वायर एडजस्ट करना है. ये एडजस्ट करते तो ऑटोमेटिक π/2 आंसर आ जाएगा. ओके हाँ हाँ, सो वही आपको यूज करना है. ओके सो यहाँ पे 1 माइनस कॉस यू था ना, 1 माइनस कॉस यू का आपको फॉर्मूला पता है विच इज 2 sin स्क्वायर u बाई 2. सी फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं. आपको यहाँ पे कैसे भी करके ये टर्म एडजस्ट करना था 0 to ∞, तो ये मैच हो रहा है 0 to ∞. ब्रैकेट में आपको चाहिए sin स्क्वायर z अपॉन z स्क्वायर, बट ये कुछ भी उस फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है. ओके बट आपको ये पता था कि 1 माइनस कॉस यू का मीनिंग क्या होता है 2 sin स्क्वायर u बाय 2, तो वो मैंने डाल दिया. ओके अभी कंपेयर करके देखो, अभी ये टर्म, चलो आगे जाके ये टर्म मेरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, u बाय 2 की जगह पे z रख सकता हूँ. हाउ यू कन्वर्ट दिस टर्म इनटू दिस? कैसे? u बाय 2 की जगह पे z ले सकता हूं मैं, है ना. बट प्रॉब्लम इज व्हाट? प्रॉब्लम इज विद दिस टर्म. इसकी वैल्यू मुझे क्या चाहिए? व्हाट इज cos लैम्डा u? इसकी जगह पे क्या आना चाहिए अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है? तो 1 आना चाहिए. वेरी गुड. तो ये टर्म मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे इस टोटल टर्म को अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो इसकी जगह पे आना चाहिए 1. तो अगर इसको cos लैम्डा u को अगर 1 कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या पुट करना होगा? cos लैम्डा u को 1 करने के लिए मुझे क्या पुट करना होगा? आई वॉन्ट दिस फ्रॉम योर साइड. एनीवन? कैन आई पुट u? मुझे बस इतना बोलो. कैन आई पुट u? u को पुट कर सकते हो क्या आप? नहीं. हाँ ठीक है. हाँ अभी ये याद रखो आप, जिनको भी ये नहीं समझ में आ रहा था. सी ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी यू जा रहा है. मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है. इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी यू जा रहा है, मतलब यू आपका वेरिएबल है. तो जो भी वैल्यू आपकी वेरिएबल आती है उसको आप कभी पुट नहीं कर सकते हो. यू कांट असाइन एनी वैल्यू टू यू बिकॉज यू इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ डी यू. इंटीग्रेशन वैरी हो रहा है ना, इंटीग्रेशन वैरीज फ्रॉम 0 to ∞. सो राइट नाउ दिस यू इज वेरिएबल. यू कांट असाइन अ सिंगल वैल्यू टू दैट वेरिएबल. ओके तो अगर आपको पुट करना है तो आपको लैम्बडा ही पुट करना होगा. सो पुट लैम्बडा इक्वल टू 0 बिकॉज लैम्बडा इज कांस्टेंट इन दिस केस. ठीक है. सो अगर आप लैम्बडा 0 पुट करते हो तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा. और लेफ्ट साइड में क्या होगा? लैम्बडा 0 कहां पे जाता है? यहाँ पे जाता है ना. तो लैम्बडा इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 माइनस लैम्बडा. बट लैम्बडा क्या है? 0. तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड में 1 ही मिलेगा. ठीक है. तो अगर आप लैम्बडा इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करते हो तो आपको लेफ्ट साइड में मिलता है 1, राइट साइड में ऐसा कुछ मिलता है. बट आपको चाहिए यहाँ पे sin स्क्वायर z अपॉन z स्क्वायर. इसका मतलब u बाय 2 को आप z रख दो. दैट गिव्स यू du इक्वल टू 2dz. लिमिट एक बार चेक करो, वही आते हैं. लिमिट मतलब क्या है? अब ये z में कन्वर्ट होने वाला है ना. यहाँ पे u के लिमिट क्या आते हैं? 0 to ∞. आप अभी उसको z में कन्वर्ट कर रहे हो. तो जब आप u इक्वल टू 0 पुट करते हो z की वैल्यू भी 0 आती है. जब आप u इक्वल टू ∞ लेते हो z की वैल्यू भी इन्फिनिटी आते हैं. तो लिमिट्स आपके वही आएंगे 0 to ∞. sin स्क्वायर u बाय 2 की जगह पे z आ जाएगा. नीचे u स्क्वायर था. u स्क्वायर मतलब क्या है? u इक्वल टू 2z आता है ना. तो u स्क्वायर क्या आएगा? 4z स्क्वायर. और du की वैल्यू क्या आएगी? du इज 2dz है ना. u इक्वल टू 2z तो du क्या आएगा? 2dz. ये आपने किया 11th 12th में, आप ऐसे एडजस्टमेंट करते हो. ठीक है. हाँ अभी सारी चीजें आपको z में कन्वर्ट करनी है. तो क्या क्या होगा? ये हो जाएगा 4z स्क्वायर. du की वैल्यू 2dz. अभी देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है. दिस 2 into 2 बिकम 4, कैंसिल विद दिस 4. और ये 2 एज इट इज. तो आपको क्या मिलता है? ये 2 आपका शिफ्ट होगा यहाँ पे और ये पाई भी नीचे आ जाएगा. तो ये पाई आपका लेफ्ट साइड में जाएगा यहाँ पे और 2 नीचे आ जाएगा. सो हियर यू विल गेट π/2 इक्वल टू 0 to ∞ sin स्क्वायर z अपॉन z स्क्वायर इंटू dz. ठीक है.
ये उसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट थी। ओके, तो थोड़ा बहुत आपको वर्कआउट करके उसमें फोकस करके आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म।